بیٹھے ہیں جو انگلش ٹو انگلش ہی بات کریں گے، لیکن اگر وہ بات کریں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیو، مجھے یہاں بلایا گیا اور مجھے علم کی اہمیت کا موضوع دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے علم کو ظاہر کروں کہ وہ کون سا علم ہے، کون سا علم ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یرفع اللہ الذین سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے علم کو، ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، سوچنے والی بات ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور میں نے ایک حدیث بھی پڑھی کہ العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ، کہ جو علم ہے وہ کتنے قسم کی ہے، کتنی طرح کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ علم 3 طرح کی ہے۔ العلم پارٹیشن آف دا تھرڈ، کہ علم 3 طرح کی ہے، علم 3 قسم کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک علم ہے جو قرآن اور حدیث ہے، اور ایک علم وہ ہے جو مسائل ہے قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہی علم اصل ہے میرے بھائیوں، یہی علم اصل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہم علم سیکھتے ہیں، جتنے بھی صنعت حرفت سیکھتے ہیں میرے دوستو، یہ سارے کے سارے یہی دھرے رہ جائیں گے اگر اللہ کے لسٹ میں کسی علم کا نام ہے۔ وہ علم دین ہے، علم حقیقی ہے، علم حقیقت معرفت کا علم کا نام ہے میرے دوستو، وہ قرآن و حدیث کی علم ہے۔ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل کو ترتیب دیا گیا وہی علم اصل علم ہے۔ اب میرا کہنے کا منشا یہ نہیں ہے کہ بھائی بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیے، یہ نہ کہیں کہ مولانا نے یہ کہا تو اب کل سے ہمیں بچوں کو اسکول چھٹی کرانی ہوگی، یہ نہ سمجھے کہ میرا بیٹا وکالت میں پڑھ رہا ہے تو مجھے اس کی پڑھائی بند کرنی ہوگی، یہ نہ سمجھے میرا بیٹا انجینئر پاس کرنے والا ہے، مولانا نے تو اب ایسا بولا اب کیا ہوگا، اب تو چھڑانا پڑے گا۔ میرے دوستو، میرے کہنے کا منشا یہ نہیں ہے، میں بھی نہیں کہہ رہا اور یہ اسلام بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی اور تعلیم نہ دو، بے شک دو۔ ضرورت ہے ایک ڈاکٹر کی جب بیمار پڑتے ہیں، ضرورت ہے ایک وکیل کی جب ضرورت پڑتی ہے، ضرورت ہے ایک انجینئر کی جب کوئی نقاشی کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہر طرح کی علم حرفت صنعت کی ضرورت ہے اور ہمیں اس چیز میں آگے بڑھنا ہوگا، لیکن یہ تمام کی تمام چیز کب ہے؟ جب ہمارے اندر قرآن ہو جائے، جب ہمارے اندر حدیث کے عمل آ جائے۔ قرآن و حدیث سے آگے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے میرے دوستو۔ آج یہ علم کی کمی ہے، ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم علم دین نہیں سیکھتے، جس کی وجہ سے ہمارے دین کو کچلا جا رہا ہے، ہم مسلمانوں کو دھکا دیا جا رہا ہے، ہم مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، ہمارے قرآن کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے آشنائی نہیں، ہم اہل علم نہیں ہیں، ہم اہل علم نہیں ہیں۔ ہاں ہم نے پڑھ لیا، میٹرک کیا، +2 کیا، وغیرہ وغیرہ بتانی لمبی لمبی ڈگریاں لے لی، لیکن ہے افسوس کہ میرے گھر میں قرآن رکھا اور مجھے تلاوت کرنا نہیں آتا۔ آہا، افسوس میرے بھائیوں کہ میرے گھر میں قرآن رکھا ہے، اس پر گرد جم گیا اور مجھے صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے، کھنگالیے دل کو کہ وہ دل ہمارا کیا ہوا ہے۔ ہم اپنا نام بھی مسلمان رکھے ہیں، اولاد بھی مسلمان کی بتاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بتاتے ہیں، لیکن کہاں گئی میرے نبی کی حدیث، کہاں گیا میرا اللہ کا کلام کہ ہم قرآن شریف کو نہیں پڑھتے، ہم حدیثوں کو یاد نہیں کرتے، ہمارا رجحان حدیثوں کی طرف نہیں ہے، ہمارا رجحان قرآن کی طرف نہیں ہے، ہمارا رجحان جلسہ کی طرف نہیں ہے، ہمارے رجحان اگر ہے تو انگلش میڈیکل انجینئرنگ کی طرف ہے، ہمارا رجحان اگر ہے تو کسی تھیٹر کی طرف ہے، ہمارا رجحان اگر ہے کسی سرکش کی طرف ہے۔ آخر یہ کس چیز کی کمی ہے؟ اگر ہمارے اندر علم دین ہوتا تو ہرگز ہمارا رجحان کہیں اور نہ ہوتا۔ جو قرآن کو سمجھ لیتا ہے، جو قرآن کو پڑھ لیتا ہے میرے بھائیوں، اس کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے درجات کو اللہ بلند فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ نہ سوچے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہندوستان میں ہمیں مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ چیئرمین چیئر پہ بیٹھے مودی، اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ میڈیا والے سامنے ہیں، میں کھل کے بول رہا ہوں، اس کے ساتھ پشتک تک اگر اٹھ کے آئے
मुसलमान को मिटा नहीं सकता, कुरान को मिटा नहीं सकता। ये वसीम रिजवी वो मलऊन अभी मार्केट में आया था, आप लोगों ने अखबार पढ़ा है, आप लोगों ने न्यूज देखा है कि अखबार में पढ़ा कि वसीम रिजवी ने कुरान की आयत 26 को बदलने की कोशिश की और बहुत सारे अर्जी भी डाले, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए मेरे दोस्तों, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? अल्लाह ने ऐसा धुतकारा, अल्लाह ने ऐसा धुतकारा कि अपने बाप से पैदा किया हुआ मुसलमान आज मुसलमान नहीं है और हालत बदल गई। कुरान को बदलने चला, खुद चलने बदले। मेरे दोस्तों कुरान को चला था बदलने, खुद बदल गए। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, जरा सोचिए इसी हिंदुस्तान में, इसी धरती में जब अंग्रेज ने कदम रखा, अंग्रेजों ने तकरीबन 3 लाख कुरान के नुस्खे को नजरे आतिश किया, उलमाओं को, हुफ्फाज़ किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया, लेकिन बताइए क्या आज भी कुरान के किसी ज़ेर व ज़बर में कोई तब्दीली आई है? नहीं नहीं, ये कुरान की अजमत है। कुरान वो एक किताब है जो 70,000 उलूम का खजाना एक कोजे में डालकर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान की शक्ल में दिया और हमें ये बताया अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो कुरान को उठा। मेरे दोस्तों हमने ये पढ़ तो लिया है, जलसों में सुन तो लेते हैं, हदीसों की किताब में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हाय अफसोस फिर हमारा रुझान कुरान तक नहीं होता। कितना अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। हमारे बच्चों को हम बड़े बड़े ओहदे दिलाना चाहते हैं लेकिन कुरान से मोहब्बत नहीं कराते। हमारे बच्चों को औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता। कितने ऐसे घर हैं जिन घरों में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले भी 2-4 लोग बाकी हैं। पढ़िए भाई एक बार कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों हम उस कलमा के मानने वाले हैं जिसमें कहता है कि ला नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे रसूल हैं। मेरे दोस्त हम उसके मानने वाले हैं। हमारे तन से अगर गर्दन जुदा किया जाए हमें मंजूर है, अगर हमें मिटा दिया जाए हमें मंजूर है, हमें हजरत बिलाल की तरह किया जाए हमें मंजूर है, हमें जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए हमें मंजूर है, लेकिन कोई कुरान पर उंगली उठाए, कोई मेरे रसूल की तरफ उंगली उठाए, ये हरगिज हमें मंजूर नहीं। इंशाअल्लाह हम गर्दन कटा सकते हैं, हौसला बुलंद रखते हैं, हथेली पे जान रखते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लम का नाम अपनी जबान पे रखते हैं। कोई अगर कहेगा कि तुम्हें हम मिटा देंगे, खुदा की कसम डर जाइए कि हमें मिटा दीजिए, तुम हमें मिटा दोगे, हमारे मिटने से इस्लाम नहीं मिटेगा, हमारा मिटने से मोहम्मद का नाम नहीं मिटेगा, हमारे मिटने से कुरान ना मिटेगा, हमारे मिटने से अल्लाह की ये दुनिया ना मिटेगी। मेरे दोस्तों अल्लाह ने जिन चीजों को पैदा किया है अल्लाह जब तक रखेगा वो रहेगा, अल्लाह जब तक उसको उठाएगा नहीं कोई उठा नहीं सकता। ये कुरान की अजमत है। मेरे दोस्तों तमाम किताबों में तब्दीली हो गई। आप बाइबल लीजिए उसमें भी तब्दीली आई है, आप गीता लीजिए, गीता 4 तरह के उनमें भी वेदों में तब्दीली आई है। मेरे दोस्तों लेकिन एक अगर कुरान बचा है तो वो कुरान ही है जिसके एक ज़ेर व ज़बर को कोई बदल ना सका, कोई एक आयत को बदल ना सका। मेरे दोस्तों ये वो किताब है, ये वो कुरान है जिसको हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपनी बहन और बहनवी को ईमान लाते देखा उनको मार रहा था, लेकिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि आखिर ऐसी ये कौन सी किताब है, आखिर ऐसा ये कौन सा कलाम है जिसको मेरी बहन मेरे बहनवी मार खाने के बाद भी पढ़ रहा है। हजरत उमर उसको पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते लवज गए मेरे दोस्तों और ईमान से मुशर्रफ हो गए। ये वो कुरान है, ये वो कुरान है जिसको तुफैल बिन दोशी और जुबैर बिन मतम इन्होंने भी संग दिल थे, बहुत बड़े जालिम थे, लेकिन कुरान को पढ़ा, कुरान को सुना तो ये ईमान से मुशर्रफ हुए और अपने आप को काबू ना कर पाया, अपने आप को कंट्रोल ना कर पाया और वो ईमान से मुशर्रफ हो गए। मेरे दोस्तों तुफैल दोसी से बढ़कर अरब में कोई शायर नहीं था, वो शायरों का उस्ताद था, वो अदब में माहिर था, लेकिन जब कुरान के अल्फाज सुनने लगा, जब कुरान की आयतें उसकी कान में गई, जब उसको कुरान की आवाज आने लगी, उसको समझ में आ गया इस दुनिया में कितने भी बड़े अदीब हो जाए लेकिन अल्लाह के कलाम के साथ कोई अदीब टकरा नहीं कर सकता, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों फिर तुफैल ने ईमान लाया। मेरे दोस्तों जिसके पास इल्म नहीं, जिसके पास तालीम नहीं, उसकी जिंदगी कुछ और होती है, जिसके पास जिंदगी है, जिसके पास तालीम है, उसकी जिंदगी कुछ और होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना ला यअलमूना कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमूना। ऐ मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे हबीब, ऐ आका
मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को कह दीजिए, अपनी उम्मत को कह दीजिए, हरगिज बराबर नहीं हो सकता वो जो जानता है और हरगिज बराबर नहीं हो सकता वो जो नहीं जानता है। क्या भाई हो सकता है जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकता। বুঝছেন তো আপনারা, বুঝছেন তো? আমি কিন্তু আপনার মতো যেমন আপনারা উর্দু বলেন সেরকমই আমি বাংলা বলি, তাই আমি উর্দুতে চলছি। ভালো তো বুঝতে পারছেন না ভাই? একবার হাত উঠা বলুন তো সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। এখন আমি বুঝলাম কি আপনারা বুঝতে পারছেন। ঠিক আছে, তো कहाँ थे हम? वेयर वर वी? कहाँ थे बताइए ना, भूल गए? हाय, आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग भूल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं भूल तो जाएंगे, भूलने नहीं दूंगा, मैं फिर से वापस वही आऊंगा। मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर इल्म होता है, जिसके अंदर इल्म नहीं होता वो बराबर नहीं हो सकता। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आयत के जरिए से अपनी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यालमूना वल लदीना ला यालमूना, हरगिज बराबर वो नहीं हो सकते जो जानता है और वो नहीं बराबर हो सकते जो नहीं जानता है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वला ज़ुलुमात वला नूर वला ज़िल्ल वला हुरूर वमा यस्तविल अहया वल अमवात। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आयत में फरमाया, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा और ये फैसला दिल से कीजिएगा कि ये हकीकत बात अल्लाह ने अपने कलाम के जरिए से कहा है या फिर ये लोग मन गढ़ंत की बातें करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया वमा यस्तविल अअमा, कि बेशक एक अंधा और एक देखने वाला बराबर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? एक आदमी जा रहा है और एक आदमी जा रहा है, कोई फर्क है इनमें? फर्क है कि नहीं भाई? एक आदमी देख रहा है, एक आदमी नहीं देखता, क्या बराबर है? नहीं है। एक जगह अंधेरा है, एक जगह लाइट जल रही है, जरा उधर नजर उठाए, वो और ये जगह बराबर है? नहीं है। अल्लाह आयत में फरमाते हैं कि एक जगह उजाला है, एक जगह अंधेरा है, वो अंधेरा ये उजाला बराबर नहीं हो सकता। एक जगह साया है, एक जगह धूप की तपिश है, ये गर्मी ये साया बराबर नहीं हो सकता। जिस तरह के ये दोनों एक जगह मिलकर नहीं रह सकता, इसी तरह इल्म वाले और बे इल्म वाले भी एक नहीं हो सकता। अंधेरा और उजाला जिस तरह एक नहीं हो सकता, इस तरह इल्म वाले बे इल्म वाले एक नहीं हो सकता। और आगे फरमाया वमा यस्तविल अहया वल अमवात, और वो जो जिंदा है और वो जो कब्रिस्तान में लेटे हैं, क्या बराबर है? बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, आप लोगों का ध्यान किधर है मेरे भाइयों? इधर मैं खूबसूरत हूँ, थोड़ा काला सा हूँ, लेकिन खूबसूरत हूँ माशाअल्लाह। आप लोगों के सामने आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन अच्छा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, कुरान की बात कर रहा हूँ, हदीस की बात कर रहा हूँ। आपकी नजरें इधर उधर घूम रही है, इधर उधर नजरें ना घुमाइए, इधर उधर मुंह ना फेरिए, बल्कि अल्लाह और अल्लाह रसूल की बातें सुनिए कि कभी भी जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकता। जो जिंदा है, जो देखता है, वो चलता है, फिरता है, खाता है, बात करता है, हंसता है, रोता है, अच्छे बुरे को समझता है। और जो मर गया वो कुछ ना सुनता है, ना देखता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कितने अच्छे अंदाज में फरमाया कि इल्म वाले और बे इल्म वाले एक जैसा नहीं हो सकता। आपके गांव में, आपके बस्ती में कोई एक बच्चा होगा जिसने मैट्रिक पास कर लिया है, और मेरे दोस्तों हम 10 आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने एक हरफ भी नहीं जानता, ए भी नहीं जानता, कख भी नहीं जानता, क भी नहीं जानता, ख भी नहीं जानता, अलिफ भी नहीं जानता। मेरे दोस्तों, क्या उस लड़के और हम बराबर हो जाएंगे? वो लड़का और हम बराबर हो जाएंगे? यकीनन नहीं हो सकते। वो लड़का मैट्रिक किया है, उसको नाम लिखना आता है, उसको स्टेशन में जाकर अगर टिकट बनाने की जरूरत पड़ी तो उसको फार्म भरना आता है, अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करना पड़ा तो उसको फार्म भरना आता है। मेरे दोस्तों, उसको पैसे निकालने की जरूरत पड़ी तो उसको फार्म भरना आता है, बच्चों को स्कूल में दाखिला करने की जरूरत पड़ी तो उसको फार्म भरना आता है। लेकिन हम एक कागज का टुकड़ा लेकर हर एक के पीछे पीछे घूम रहे हैं। कितना फर्क है। वही बच्चा, हमारा छोटा भाई और मैं बड़ा भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं उसके पीछे घूमता हूँ। मेरा छोटा भाई इतना बड़ा पढ़ा लिखा हो गया कि उसके पीछे मैं घूमता हूँ। तो बताइए, आप दुनिया के माहौल से समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म वालों के दर्जात को बुलंद किया कि नहीं?
किया कि नहीं भाई? इल्म वाले के दर्जात को अल्लाह ने बुलंद किया कि नहीं? अगर दुनिया में यह हाल है तो कल मैदान महशर में कयामत के दिन वो क्या हाल होगा जिनके ज़बान पे कुरान की आयतें जारी थी, जो नमाजों में सजदे करते थे, अल्लाह से बात करते थे, अपनी मुसीबत परेशानियों के वक्त अल्लाह से अपना मशवरा करता था, उनका क्या हाल होगा? आज हमारा हाल ये है कि हम सरकार से पूछते हैं, हम जिम्मेदारान से पूछते हैं। मेरे दोस्तों, सहाबाए किराम सितारे के मानंद है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो भी मेरे किसी भी सहाबा की तरह इक्तदा करोगे वो कामयाब हो जाओगे। मेरे दोस्तों, वो राह पर जाओगे। मेरे दोस्तों, हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? मेरे दोस्तों, हम कहाँ हैं? जरा देखें, हम किस खाई में पड़े हुए हैं? हम किस खाई में पड़े हुए हैं? किस जमीन में, किस समंदर में गोता लगा रहे हैं? मेरे दोस्तों, देखना होगा, हमें जरूरत है आज देखने की। अगर अब भी ना हम समझे, आज भी ना हम देखें तो कहीं नहीं हो सकता। अगर इल्म दीन, अगर कुरान और हदीस का इल्म हकीकत ना होता, अगर डॉक्टरी पढ़ना ही हकीकत होता, अगर इंजीनियरिंग पढ़ना ही हकीकत होता, अगर जस्टिस बनना ही हकीकत होगा, अगर वकील बनना ही होता, तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा बंदों को इन इल्म से मुत्तसिफ करता। लेकिन अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदों को इन इल्म से मुत्तसिफ नहीं किया, बल्कि किससे किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने इल्म हकीकी लेकर आए और उन्होंने अपने औलाद को दावत दी कि इल्म हकीकी सीखना। मेरे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए वो भी इल्म दीन लेके आए और उन्होंने भी अपने औलाद को दावत दी इन्हीं अल्फाज के जरिए से कि तुम इसकी इताअत करना। वइज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूह अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह वअतीऊन। जब नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, नूह अलैहिस्सलाम आए तादेर भाई के ताए बोलছিলেন, ए भाईरा তোরা কি আল্লাহকে জানো না? আল্লাহকে দেখে ভয় খাও না? मेरे भाइयों, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? क्या तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो मुझे तुम्हारी तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया? मैं मोतबर हूँ, विश्वास करो, আমার কথা শুনো, আল্লাহর ইতাআত करो। मेरे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वइज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूद अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह वअतीऊन। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, वो भी इल्म दीन लेकर आए। उन्होंने भी अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को, अपने भाइयों को इन्हीं अल्फाज के जरिए से दावत दी कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ, मैं तुम्हारे तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ, मैं ही मोतबर हूँ, तुम मेरी बात मानो और अल्लाह की इताअत करो। वइज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहून अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह वअतीऊन। मेरे भाइयों, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उनको भी यही इल्म दिया गया और वो भी अपने भाइयों से यही कहा, ऐ मेरे भाइयों, अला तत्तक़ून, क्या तुम नहीं डरते हो अल्लाह से? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। फत्तक़ू अतीऊन, तुम अल्लाह से डर और इताअत कर ले अल्लाह की, मेरा कहना मान लो। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहते हैं, वइज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह वअतीऊन। जब लूत अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, लूत आने के बाद भी लूत ने भी इन्हीं अल्फाज के जरिए से अपने भाइयों को, अपनी कौम को दावत दी कि तुम अल्लाह से डरो, तुम लोग अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ हो और मेरा कहना मान लो, मैं तुम्हारी तरफ सच्चा पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ और मैं ही मोतबर हूँ। तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मान लो, तुम अल्लाह की इताअत करो। मेरे मोहतरम दोस्तों और अजीज साथियों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, कि वो ज़माना याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम को हमने हिदायत दी, जब मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते हमने खोल दिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म सीखने की जरूरत पड़ी, हजरत खिज़र से राबता करते हैं और फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ हजरत खिज़र, मुझे वो इल्म सिखा दीजिए जो इल्म आपको अल्लाह ने सिखाया है। आहा, और हम कौन सा इल्म सीखना चाहते हैं? जो कॉलेज में संजय सर सिखाते हैं।
میرے دوستو حضرت موسیٰ کو دیکھیے، فرماتے حضرت خضر سے اے خضر مجھے وہ علم سکھائیے، کیا آپ مجھے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے جو آپ کو اللہ نے سکھایا؟ یہ حضرت موسیٰ تھے۔ اور پھر میرے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کے امتی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو رسالت سے معاف کیا گیا، انہیں سرفراز کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا حکم فرمایا؟ فرشتے کے ذریعے سے اقرا، کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھ محمد پڑھ۔ اللہ کے نبی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتا ہے انا بقائم، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر زور سے دباتے ہیں اور بولتے ہیں اقرا پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے محمد پڑھ تیرے اس رب کے نام سے جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، پوری دنیا کو پیدا کیا، دونوں جہان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور جنہوں نے انسان کو پیدا کیا اس حالت میں جب انسان ایک خون کا لوتھڑا تھا، ایک گندا خون کا جمع ہوا تھا، وہاں سے انسان کو پیدا کیا۔ میرے محترم دوستو، علم بالقلم، فرماتے ہیں کہ وہ تجھے سکھایا وہ جو قلم کے ذریعے سے۔ میرے دوستو قرآن کریم تو وہ ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے، قرآن کریم وہ ہے، وہاں بائبل تحریر نہیں ہے، وہاں گیتا وید تحریر نہیں ہے، وہاں حسن وید تحریر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت تحریر ہے لوح محفوظ میں، عرش معلیٰ میں محفوظ ہے۔ میرے دوستو اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بھی بڑا مقصد جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہمت اور جرأت عطا فرمائی، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اے لوگو ذرا سنو اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ طاقتور قرآن ہے، جب زمین پہ اتارنا چاہا زمین نے انکار کر دیا، زمین اس کا وزن نہ اٹھا سکا، جب پہاڑوں پہ اتارنا چاہا پہاڑ نے انکار کر دیا کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، چٹانوں نے انکار کر دیا میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر ایک ایسا سلسلہ جاری کیا، قرآن کو مٹانے کی ہر زمانے بات کی جا رہی ہے، قرآن کو بدلنے کی ہر زمانے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے وہ طاقت امت محمدیہ کو دی ہے۔ کیا غلط ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھائیں، بولے زور سے سبحان اللہ۔ آواز نہیں آئی، سبحان اللہ۔ ارے کھا کے آئے، زور سے بولو، طاقت لگا کے بولو، سبحان اللہ کی صدایں چاروں طرف گونجنی چاہیے، ایسی صدا لگاؤ کہ ذات ہے وہ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ، بولو سبحان اللہ۔ ہم اتنا زور سے بول بول کے آپ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اگر سبحان اللہ بولنے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہوگی تو ہم باطل طاقتوں کو توڑنے کے لیے تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ وہ جذبہ پیدا ہونا ہوگا، وہ ہمت کرنی ہوگی، دلوں کو مردہ ہو گیا جگانا ہوگا، ہمارے دل دماغ میں قرآن و حدیث کو گھسانا ہوگا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو نہ گھسائیں گے، اگر ہم قرآن و حدیث کو اختیار نہ کریں گے، ایک دن دور نہیں ہم مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، جب تم سب چیز بھول جاؤ گے میں تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دوں گا۔ یاد کرو آج کا دن کون تم پر مسلط ہے، کون ہے مسلط؟ سوچو اس بات کو، غور کرو میرے بھائیوں، غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا، فرمایا اے نبی پڑھ، اور نبی نے پڑھا۔ میرے دوستو اللہ نے فرمایا کہ میں قلم کے ذریعے سے تمہیں وہ چیز سکھاتا ہوں، اور جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جان سکتے۔ اور پھر قرآن آگے جا کر میرے دوستو جب تکذیب کی دشمن اسلام نے قرآن کی، تو قرآن خود مقابلہ کرتا ہے، قرآن خود کہتا ہے ان کنتم شہداء، میرے دوستو قرآن خود فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ہو، تم حق ہو، تم سچ ہو، تو کچھ زیادہ نہیں، صرف ایک آیت میرے جیسے پیدا کرو۔ کوئی ادیب ایسے نہیں، کوئی فصیح ایسے نہیں، کوئی بلیغ ایسے نہیں کہ وہ قرآن کی آیت کے جیسے کوئی آیت بنا دے، کوئی قرآن کی آیت کے جیسی آیت لکھ دے۔ آج تک کوئی نہ کر سکا، اور آخری دنیا تک کوئی نہ کر سکے گا۔ میرے دوست یہ قرآن کی عظمت ہے۔
अल्लाह ने वो हौसला अता फरमाया। 4-4 साल 6-6 साल के बच्चों को कुरान सीने में महफूज दिया। मैं यहाँ पे 2-4-3 बच्चे शायद हाफिज कुरान हुए हैं, मैं उनके वालिदैन को मुबारकबादी देता हूँ, मैं उन बच्चों को सलाम ठोकता हूँ, मैं उन बच्चों को सलाम कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों को हौसला दे रहा हूँ कि ऐ बच्चों, खुदा की कसम तुम इस जमीन से ज्यादा मजबूत हो, तुम उस पहाड़ से ज्यादा मजबूत हो, तुम उस चट्टान से ज्यादा मजबूत हो जिनको कुरान के वजन को जिन्होंने बर्दाश्त न कर सके। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे अंदर वो दिल दिया है, अल्लाह ने तुम्हारे सीनों में वो ताकत दी है कि तुम कुरान को अपने सीने में महफूज किए। इंशाअल्लाह हम हर एक घर में अपनी औलाद को कुरान हिफ्ज़ करने के लिए लगाएंगे। इंशाअल्लाह हमको हर कोई अपने घर में एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे। इंशाअल्लाह बनाएंगे भाई। कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठा। कितनी कंजूसी, अरे झूठ भी बोल लोगे, हाथ उठा लोगे, मैं कौन सा घंटा बजाऊंगा घर में जाके, मैं बजा पाऊंगा क्या कि आप बनाए नहीं पाए? वादा करो अल्लाह से, जन्नत हासिल करनी है, जन्नत पाना है तो हाफिज कुरान औलाद को बनाना है। ये वही औलाद होगा जब हमारी सांसें रुक जाएगी, जब हम कब्रिस्तान में लेटे रहेंगे, ये वही औलाद होगा जो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल नहीं पढ़ेगा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कब्र पर जाकर पढ़ेगा। उन अल्फाज को पढ़ेंगे जिन अल्फाज के जरिए से अल्लाह हमारे अज़ाब को दूर फरमाए। हमारा वक्त हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों का महफिल को, आप लोगों की समात को सलाम करता हूं और हजरात से मैं दरखास्त करता हूं कि थोड़े से वक्त का तलबगार हूं मैं, ज्यादा मांगू तो गुनहगार हूं मैं, थोड़े से वक्त का तलबगार हूं मैं, ज्यादा मांगू तो गुनहगार हूं मैं ये नहीं कहता आज रात दे दीजिए मुझे, सिर्फ 2-4 बात बोलने की इजाजत दीजिए मुझे। 5 मिनट मिला है भाई, बड़े भीख मांग के दामन फैला के 5 मिनट मिला है, मैं 5 मिनट में कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह बैठ जाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग गौर से समाप्त फरमाए और हौसला अफजाई करें दिल में कि इंशाल्लाह हमें हाफिज कुरान हम घर में बनाना है। हमारा बनने का वक्त नहीं रहा, लेकिन अगर हम हिम्मत करें बन सकते हैं। शेखुल हिंद हजरत हुसैन अहमद मदनी साहब ने जब हज करने के लिए जा रहे थे, पानी जहाज में सफर कर रहे थे, रमजान का महीना था, शाम का वक्त हुआ, तरावी का वक्त हुआ, तरावी पढ़ाने वाला कोई ना था। हजरत को बड़ा अफसोस हुआ, उस दिन सूरह तरावी पढ़ ली, अगले दिन उन्होंने एक पारा कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया और फिर रात को तरावी पढ़ाई। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान कितना आसान है, कुरान कितना आसान है। जब बूढ़ा चाहता है कि मैं इसको सीने में ले लूं, वो भी ले सकता है। जब 3-4 साल का बच्चा लेना चाहता है, ले सकता है। मैं बता रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, एक कब्र में शदीद अजाब हो रहा था, आवाजें बाहर आ रही थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आवाज सुन रहे थे। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, अजीब बात है, हजरत ईसा चले गए, कुछ जमाने के बाद जब वापस आए उसी कब्रिस्तान के पास से आए। कहां से आए? उसी कब्रिस्तान के पास से आए जहां अजाब हो रहा था। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, आए, उन्होंने देखा अजाब की आवाज नहीं है, अब अजाब भी नहीं हो रहा है। अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह से मनाजात की, ऐ मेरे रब करीम, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला, मुझे ये बात बता दी जाए, आखिर इस कब्र में अजाब क्यों हो रहा था और जब मैं वापस आया अब अजाब क्यों नहीं? अल्लाह तबारक व तआला अपने जिब्राइल के जरिए से फरमाते हैं, जाओ हजरत ईसा को कह दो कि वो शख्स है जो अपने बीवी को हामला छोड़कर मर गया था। हामला छोड़कर, हामला समझते हो ना, प्रेग्नेंट छोड़कर अपनी बीवी को मर गया था और वो बहुत बड़ा गुनहगार था, उनके गुनाहों की वजह से उन पर अजाब हो रहा था। मेरे भाइयों और अजीज साथियों, फरमाते हैं जब उसकी बीवी ने बच्चा जना और उस बच्चे को मकतब में लगाया, वो बच्चा वो लड़खड़ाती जबान से जब उस्ताद ने उसको कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाह, उस बच्चे ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी शान, मेरी शौकत, मेरी दबदबा जोश में आई, मेरी रहमत जोश में आई और मैंने कहा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। वो बंदा जो मर गया, जिसको मैं अजाब दे रहा था, वो अपनी नस्ल को छोड़ आया, उसकी बीवी ने बच्चा जना और वो बच्चा मकतब में दाखिल है। आज वो लड़खड़ाती जबान से, वो नाजुक जबान से मेरा नाम उस जमीन के ऊपर ले रहा है, तो मैं जमीन के नीचे उसके बाप को कैसे सजा दे सकता हूँ? अल्लाह अल्लाह फरमाइए, कहिए सुभान अल्लाह। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से बच्चे उसके बाप को कब्र आदाब से बचा दिया जाए, तो फिर कुरान पूरा पढ़ ले तो क्या होगा? ये दुनिया कीमत लग जाएगी। एक माँ बेटा का वाक़या सुनाता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ, मुझे 5 मिनट दिया गया है, 2 मिनट हुए, 3 मिनट है। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, एक माँ और एक बेटा की मोहब्बत को देखिए।
एक बच्चा था, उसके वालिद मोहतरम इंतकाल हो चुका था, लेकिन माँ के अंदर ख्याल था, माँ को शौक था, माँ दीनदार थी। उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है जब हाफिज कुरान बन जाता है तो वह जन्नत का रास्ता खोल लेता है। मुझे भी जन्नत चाहिए, मुझे भी जन्नत जाना है, मैं कैसे जाऊंगी? इसी बच्चे के जरिए से जाऊंगी। वो अपने बच्चे को मदरसा भेजा और कहा बेटा हाफिज कुरान बन जा। वो बच्चा था, बच्चा भागा भागा घर आता है, मदरसे में दिल नहीं लगता, फिर छोड़ कर आई, फिर बच्चा घर आया, इधर 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 देखे मैं खूबसूरत हूँ, इधर देखे खूबसूरत वाकया बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त बच्चा फिर घर आया, माँ को गुस्सा आया कि आखिर ऐसी क्या बात है, तू भाग भाग के घर आता है, जा तू आज भी मदरसा जा। वो बच्चा बोलता है माँ तुम तो मुझे मदरसे में छोड़ कर आई, माँ तेरे से ज्यादा मुझे कौन मोहब्बत करेगी? माँ मैं जब रोऊंगा किसकी आंचल से अपने आंसू को पूछूंगा? माँ माँ मैं जब खड़ा नहीं हो पाऊंगा वो कौन होगा जिसकी उंगली पकड़ के मैं खड़ा होऊंगा? माँ मुझे दर्द होगा, मैं किसको कहूंगा मुझे दर्द हो रहा है? माँ माँ अगर आप यहाँ हो मुझे भूख लगेगी, कौन होगा जिससे मैं खाना मांगूंगा? मेरे दोस्तों माँ का रिश्ता बहुत मजबूत है, बाप का रिश्ता बहुत मजबूत है। दुनिया में सारे रिश्ते झूठे हैं, लेकिन एक रिश्ता है जो माँ बाप का है, सच्चा है। माँ अपने दिल को काबू ना कर सकी, माँ दिल को काबू ना कर सकी, माँ का कलीजा फट रहा है, एक ही बच्चा है, बच्चा से जुदा ना रह सकती, लेकिन माँ का दिल देखिए, माँ चाहती है कि मेरा बेटा वो बन जाए जिसका अल्लाह बुलंद मर्तबा करे। माँ बच्चे को हाफिजा के लिए मदरसा में भेज देती है और मदरसे में जाकर बड़े रौब के साथ, नाराजगी के साथ बच्चे की तरफ देखकर उस्ताद से फरमाते हैं ऐ उस्ताद मोहतरम, ये बच्चा आज से मेरा नहीं, ये बच्चा आपका है। ये बच्चा जिस दिन हाफिज कुरान हो जाएगा उसी दिन मैं इसके मुंह देखूंगी। और बच्चा फिर घर में वापस जाता है, फिर दरवाजा खटखटाता है, माँ खिड़की से झांकती है, माँ खिड़की से देख लेती है कि मेरा बच्चा वापस आ रहा है, खिड़की बंद कर देती है, दरवाजा बंद कर देती है और बैठकर अंदर रो रही है, कलीजा फट रहा है, दिल धड़क रहा है, धड़कन तड़प रही है, जान रूह निकल रही है। मेरे दोस्तों बच्चे से जुदाई की बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन दिल पर पत्थर रखा, उन्होंने दिल को मजबूत किया, उस बच्चे से कहा तू मेरा बच्चा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तो वो होगा जिस दिन हाफिज कुरान हो जाएगा, जिस दिन चेहरा सुन्नतों वाला हो जाएगा, जिस दिन सर पे टोपी हो जाएगी, जिस दिन लिबास सुन्नतों वाला हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बच्चा दिल बिलाते हुए रोते हुए वापस जाता है, बच्चा भी रो रहा है, माँ भी रो रही है। बच्चा पहुंच जाता है, बच्चे को माँ ने कसम दी कि तू उस दिन मुझे मुंह दिखाना जिस दिन हाफिज कुरान होगा। बच्चा वापस चला जाता है, हाफिज कुरान बनकर वापस लौटता है, माँ अपने गले से चिमेट लेती है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। खुशी का रोना था मेरे दोस्तों, खुशी का रोना था। इंशाअल्लाह कोशिश करें हर कोई अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारा वक्त अलविदा का हो चुका है। आप सबसे दरख्वास्त है दुआओं की कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। अगर मेरे कहने सुनने में कुछ भी गलती हुई माफ करें और अल्लाह से भी माफी मांगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।